नमस्कार मित्रों, मैं चेतन परमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के शिक्षा ट्यूटोरियल हिंदी सीरीज के अंदर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ADO.NET के डेटा रीडर के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट डेटा रीडर क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। So the data reader object in ADO.NET is a stream based forward only, read only, retrieve of query result from data source which do not update the data. So जो important चीज है वो है stream based, forward only, read only and not updating data. So एक लोकल डेटाबेस या डेटाबेस के टेबल्स की लोकल कॉपी जो क्रिएट हो रही है तो लोकल डेटा को स्टोर कर रहा है विच इज अ डेटा रीडर, बट वो डेटा वापस से टेबल्स के ऊपर अपडेशन वो नहीं परफॉर्म कर रहा है। The data reader cannot be created directly from code, so they can created only by calling the execute reader method of command object। जैसे हमने कमांड के वीडियो के अंदर में देखा था, कमांड ऑब्जेक्ट के वीडियो के अंदर में देखा था कि कमांड ऑब्जेक्ट के पास तीन एग्जीक्यूट मेथड अवेलेबल है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट रीडर एंड एग्जीक्यूट स्केलर। सो उसमें से एग्जीक्यूट रीडर मेथड जब फायर होती है तब एक डेटा रीडर क्लास का यूज आता है। वहां पे सिंटैक्स वाइज देखा जाए तो लाइक दिस, कमांड ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट रीडर एंड वो डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट को रिटर्न बैक करेगा। The data reader object provide a connection oriented data access to the data source. So majorly ये connection oriented architecture के अंदर में काम करेगा। A connection object can contain only one data reader at a time, and the connection in the data reader remains open and cannot be used for any other purpose while data is being accessed. So जब connection establish हो जाएगा in connected architecture के अंदर में, सो ओनली वन, एक ही डेटा रीडर को आप एट अ टाइम यूज कर सकते हो। जब तक कनेक्शन आपका ऑन है तब तक ये डेटा रीडर के अंदर में प्रोसेसिंग चलता रहेगा। जैसे कनेक्शन क्लोज करोगे आप सेकंड डेटा रीडर के ऊपर काम कर सकते हो। When started to read data from data reader, it should always be open and positioned prior to the first record. So मतलब जैसे वो कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड डेटा रीडर रीड करने की ट्राई करेगा कनेक्शन ओपन होने के बाद, तो सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड से वो डेटा को पिक करना स्टार्ट करेगा। द रीडर मेथड, दिस रीड मेथड ऑफ डेटा रीडर is used to read the rows from the data reader and it always moves forward to a new valid row if any row exists. So यदि आपको डेटा रीडर में एक बार टेबल की इंफॉर्मेशन आपकी आ चुकी है, उसके बाद डेटा रीडर में से डेटा को रीड करना है, तो यूजिंग दिस रीड मेथड ऑफ डेटा रीडर क्लास ऑब्जेक्ट हम डेटा को रीड कर सकते हैं। बट वापस एक क्वेश्चन से आता है कि वो डेटा हम रीड करेंगे तो इट इज ऑलवेज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब तक डेटा को रिकॉर्ड मिलता रहेगा वो रिकॉर्ड को मूव करता रहेगा आगे। लाइक डेटा रीडर डॉट रीड मेथड। Now some of the important properties of data reader object class. सबसे first property is a depth. So it indicates a value that indicates the depth of nesting for the current row. Second है field count. So which is to indicate the number of columns in a current row. कितनी number of columns available है in a one single row के अंदर में, तो इसकी field count करके हमको बताएगा। Hash rows, it indicate a value that indicates whether a data reader contains one or more rows or not. Is closed, it indicates whether the data reader is closed or not. So data reader को close कर दिया है या अभी भी वो currently open है। Then item, it indicates the value of the specified column in the native format. Records affected, it indicates the number of rows changed, inserted or deleted by execution of SQL statement. And visible field count, it indicates the number of fields that are not
hidden. Now methods of the data reader object class. So जो कुछ इंपॉर्टेंट जो मेथड्स अवेलेबल है डेटा रीडर ऑब्जेक्ट क्लास की, उसमें सबसे फर्स्ट है क्लोज्ड मेथड. So it close the data reader object. Get name method gets the name of specified column name. Get value. So using this method आप specified column की value get कर सकते हो. Get values gets all the attributes column in a current row. Next result. So when data reader have result of batch SQL statement, then using the next result it moves to the next result set. यदि आप batch SQL statement provide कर रहे हो तो वहां पे आप यूज करोगे नेक्स्ट रिजल्ट. एंड रीड मेथड it read the next records. Now see the some small example of data reader. सबसे फर्स्ट क्या किया हुआ यहाँ पे कि SQL कमांड का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया CMD करके. नाउ कमांड का प्रॉपर्टीज के थ्रू हमने कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है. कमांड टेक्स्ट के अंदर में लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो टेबल नेम. कनेक्शन को हमने ओपन किया, कनेक्शन डॉट ओपन. नाउ SQL डेटा रीडर dr is my object or say variable of SQL data reader types equal to command dot execute reader. So जैसे command dot execute reader मेथड फायर होगी, सिलेक्ट करके जो क्वेरी फायर हमने की है वो पूरा रिकॉर्ड वो शो हो जाएगा अब dr के अंदर में. एंड dr डॉट रीड मेथड के थ्रू हम वन बाय वन रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं. नाउ मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा दिया यूजिंग मेथड गेट वैल्यू. सो dr डॉट गेट वैल्यू 0 इज द फर्स्ट कॉलम इंडेक्स, देन 1 सेकंड के लिए एंड 2 फॉर थर्ड कॉलम के लिए. सो हमने 3 कॉलम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी यूजिंग गेट वैल्यू मेथड ऑफ डेटा रीडर क्लास ऑब्जेक्ट. देन कैच ब्लॉक यदि एक्सेप्शन जनरेट होता है तो एक्सेप्शन यहाँ पे प्रिंट करेगा, अदरवाइज कनेक्शन को क्लोज करेगा एंड टर्मिनेटिंग प्रोग्राम. सो सिंपल सा कोड है अवेलेबल से. यू आपको जस्ट SQL डेटा रीडर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और वेरिएबल के अंदर में कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर की वैल्यू को स्टोर करवा देना है. एंड रीड मेथड के थ्रू डेटा को रीड करवा लो एंड स्पेसिफिक वैल्यू आपको उस पर्टिकुलर रो की चाहिए तो आपको यूज करना है गेट वैल्यू मेथड ऑफ डेटा रीडर क्लास. So thank you so much for watching this video. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए. आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उस बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए. सो यदि फ्यूचर में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मैसेज मिलता रहेगा. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.